Hello everyone, I'm Anu here. Hi, I'm Parikshit. Welcome to our channel Podcast with Sparrows Creations and Happy Diwali. हैप्पी दिवाली। वैसे कॉन्ग्रेट्स टू ऑल। अनु, हम 2 साल बाद अब दिवाली मना रहे हैं। Of course. सारे इतने मतलब तरीके से, पूरे तरीके से हमारा त्यौहार तरीके से मना रहे हैं। 2 साल के बाद हम लोगों Yes. को ये मौका मिला है कि हमारी बाजारों में फिर से वही रौनक है, शादियों ब्याहों में फिर से वही रौनक आ चुकी है जो हम हमेशा से जाते हैं। एंड वी आर जस्ट क्रॉसिंग आवर फिंगर्स कि सब चीज़ें इसी तरीके से रहे और दिवाली सबके लिए शुभ रहे। हो। सो आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, राइट परीक्षित? सब्यसाची। ऑफ कोर्स द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एड आज की डेट Yeah. में जो चल रही है, जिसको कहते हैं हम द मंगलसूत्रा एड। सो हम लोगों ने कुछ लोगों से हमने कुछ वीडियोस बाइट्स मंगवाई हैं कि हम जानना चाहते थे कि उनके व्यूज़ क्या है। एंड प्लीज़, it's not about communal first of all, and it's a very unbiased video, so see it with the unbiased कि उनके व्यूज़ क्या है, क्योंकि अगेन हर किसी के व्यूज़ जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं बिकॉज वी आर फ्रॉम द फील्ड ऑफ आई कैन से वेडिंग फैशन। और वैसे अनु, ये हर किसी का अपने अपने व्यूज़ हैं, और किसी ने पॉजिटिव बोला, कि किसी ने फेवर में बोला और किसी ने फेवर में नहीं बोला। हाँ, तो यही है कि व्यूज़ सबके अपने अपने होते हैं। तो देखते हैं पहले कि हमारे जो गेस्ट हैं, जिन लोगों ने हमारे को वीडियो बाइट्स दिए हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं। Hi, hello everyone. Myself Tanya. I own a brand, Tanya's Creation. I'm a fashion designer myself. So I'm here to talk about the controversy regarding the Sabyasachi ad shoot campaign regarding the Mangalsutra collection, which was a fine jewelry collection. And I think he's not at all wrong in a way, because Mangalsutra is obviously it is considered to be a most important and significant part of the Hindu society. बट मुझे लगता है कि उसका रीज़न, उसका एक मोटिव बिहाइंड किसी को नीचे करने का नहीं था, बट इट इज़ जस्ट टू गेट मोर एम्पावरमेंट. His basic reason was to get more empowerment towards modernization, and so that people and women actually take the Mangal Sutra more into their daily lives in these types, in this modern era actually. क्योंकि hardly we see women who wearing Mangalsutra now. Even I talk about myself. We don't wear it on a regular basis. So I feel he's really getting into more different designs and collection, and which is really good and very trendy. Hi everyone. So here we're talking about Sabyasachi's new advertisement, his Mangal Sutra and his new trending lightweight jewelry. I feel he could have been a little more sensitive. Skin showing doesn't go with Sabyasachi. He's all about heritage of India, culture of India, and traditions, what reflects in his collection and his persona. He could have been a little more sensitive and thought of much better ways of advertising his new range. So yeah, that's what I think. Hello everyone, this is Bijul Narang and I'm into advertising. So if I have to share my opinion on the ad campaign, that Sabyasachi's intimate jewelry ad campaign, it would be कि उसमें ऐसा कुछ है नहीं यार, मतलब it doesn't bother me at all. And why should it bother me? Because I don't find it offensive at all. उसमें कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया, उसमें कुछ ऐसा किसी को हार्म नहीं पहुंचाया गया, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचाया गया, किसी पर्टिकुलर बिलीफ को हार्म नहीं पहुंचाया गया. उसमें बस एक थोड़ा सा इंटीमेट ज्वेलरी दिखाई गई है, ऐसा कुछ है नहीं उसमें. एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल आर मेकिंग ऑल दिस कंट्रोवर्सी अबाउट इट. एंड अगर आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव लगता है, या आपको लगता है कि यार ये चीज़ हमारे लिए गलत है जो ये दिखाई जा रही है, तो मेरे हिसाब से उस एडवर्टीजमेंट में कोई गलती नहीं है, वो आपके दिमाग में गलती है. एंड या दैट्स इट. एंड यही मेरा ओपिनियन है. थैंक यू सो मच. Hello, I'm Ruhani and I'm a student. I also own a jewelry page named as Elysian. So recently, Sabyasachi released this Mangalsutra collection named as the Royal Bengal Collection, which shows off a spin on the traditional Mangalsutra. And it was fashioned on a dusky plus size women, which created a controversy amongst people. And the people were not happy with it, and they
posted nasty comments under the picture talking about how it badly the Mangalsutra was presented and advertised by Sabyasachi. But I don't think there's something wrong or bad in it, as they're promoting love and intimacy, and they're aimed to talk about the inclusivity and empowerment, in which empowerment is actually making people more stronger and more confident. And the argument that took place that described that the inequality, the gender inequality, I think including men in empowering women is necessary. So I'm against the controversy that took place. Thank you. हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल शुक्ला है और आज मैं यहाँ आपके सामने पिछले दिनों हुई एक कंट्रोवर्सी के चलते अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। सब्यसाची मुखर्जी जो कि एक मशहूर फैशन और ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, उन्होंने पिछले दिनों अपना एक ब्रांड लॉन्च किया था जिसको उन्होंने नाम दिया था इंटीमेट फाइन ज्वेलरी। इसमें कुछ मॉडल्स मंगलसूत्र पहन नज़र आई थी और कुछ लोगों को शायद ये विज्ञापन समझ में नहीं आया, उन्हें लगा कि ये विज्ञापन अश्लील है, तो उन्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया गया। यहाँ तक कि उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया जिसमें बोला गया कि अपना ये ऐड कैंपेन आप वापस लीजिए। उसके बाद सब्यसाची ने सामने आए और उन्होंने माफ़ी मांगी और ये बोला कि शायद मेरे इस ऐड कैंपेन से कुछ किसी पर्टिकुलर वर्ग के लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपना ये कैंपेन वापस ले लिया। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि उनका इस ऐड कैंपेन का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था, बल्कि एक सेलिब्रेशन बनाने का था। एक फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो एक उत्सव की तरह से उन्होंने इसको अपने इस ऐड कैंपेन को लॉन्च किया था। बट बहरहाल उन्होंने ये अपना ऐड कैंपेन वापस ले लिया। और मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि हम कौन होते हैं किसी के काम में बाधा पहुँचाने वाले? हम कौन होते हैं किसी की काम के अंदर अपना इंटरफेयर करने वाले? क्यों हम दूसरों को सजेशन देते हैं कि ऐसा ना करो, वैसा ना करो? जैसा है चलने दो, ग्रो अप, लिव एंड लेट लिव। तो प्लीज़ किसी के काम में कोई अड़चन ना दें। अगर सब एक दूसरे के काम में ऐसे ही बाधा ना आने लगे फिर तो हो लिया काम। तो दोस्तों मत कीजिए ऐसा। एक बार फिर से ये बोलूँगा, live and let live. Thank you so much. Hi, this is Pooja, and my profession, I'm a makeup artist. Being a makeup artist, I know people come to me and they ask me that we want to look like a Sabyasachi bride. तो आप मेरा वैसा makeup, वैसा look create कर दीजिएगा मैम। तो I know what value has Sabyasachi. एंड वो अर्न किया है सब्यसाची ने। आई रियली अडोर, आई रियली रिगार्ड, आई रियली लव सब्यसाची कलेक्शन एंड सब्यसाची ब्रांड बिकॉज देर आर लॉट मेनी अदर ब्रांड्स ऑल्सो। बट सब्यसाची ने जो इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज है, उसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके उसको ऐसे प्रेजेंट किया है कि लोगों में वो बंदहेज, लहरिया, ब्रोकेड, बनारसी, गोटापट्टी, जो भी इंडियन हेरिटेज है उस सबको सहेजा है, उस सबको एक तरह से प्रिजर्व किया है, उसको रिवाइव किया है, दोबारा फैशन में लाया है, और जिससे कि शायद वीवर्स को भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा। बट अभी जो ये ऐड बनाया गया है, इसमें जो मंगलसूत्र ज्वेलरी यूज़ किया है ना, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट व्हाट आई फील। अगर वो एक लॉन्जरीज का ऐड होता ना तो चलता, बट वो ऐड है मंगलसूत्र का, एंड मंगलसूत्र इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ ज्वेलरी। इन इंडियन वेडिंग इट होल्ड्स अ वेरी ह्यूज सिग्निफिकेंस। मंगलसूत्र इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ ज्वेलरी। और वो ऐड देख के आपको लग रहा है जैसे कि आप लॉन्जरीज का ऐड देख रहे हो, विच आई डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ ब्रांड लाइक सब्यसाची। Hello, friends. Today, I think my opinion I would like to give you about the much hyped controversy for Sabyasachi intimate fine jewelry. I don't know why people have hyped it and made it so very controversial. I don't understand the relevance. It's up to the designer how he wants to put up his line in the market. It's his vision for his baby,
how he wants to portray it, and I don't find anything vulgar or anything demeaning. And he's not playing any caste game, he's not playing any religion game. It's straightforward, simple line of product. And those people who want to buy Sabyasachi jewelry will not buy for the ad, they will buy for the workmanship Sabyasachis, right? So how is it ad bothering anyone? I don't understand that. तो देखा आपने, हर किसी के अपने अलग अलग व्यूज़ हैं, हर कोई अपने सोच के हिसाब से उसको बता रहा है। हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है, हमने सबके व्यूज़ सुने हैं, लेकिन परीक्षित तुम यस क्या सोचते हो? यार देखो, मेरे लिए बिल्कुल ये नॉर्मल ऐड है। मैं इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लूँगा कि जैसे लोगों ने सोच के उसको इतना बड़ा वो हाइप कर दिया। हाइप करने के लिए तो कुछ भी होता है, छोटी छोटी चीज़ों को भी हाइप कर देते हैं। मैं एक वेडिंग इंडस्ट्री से भी हूँ और मैं फैशन इंडस्ट्री से भी हूँ। दोनों में होने के बावजूद मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल लेता हूँ। ये इतनी नॉर्मल ऐड है, इसको मतलब किसी भी चीज़ का इशू बनाने का ऐसा कुछ था नहीं। आप बताएं अनु। मैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए ज़रूर मैं बोलूँगी कि एवरीथिंग इज़ ओके, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर इश्यूज़ ही बनाने हैं तो मैं बड़ा एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे के देती हूँ। बिकॉज आई वाज आल्सो अ फैशन डिज़ाइनर आल्सो अर्लियर, वेडिंग इंडस्ट्री में आने से पहले। तो मैं एक चीज़ ज़रूर मैं बोलूँगी कि जब हम साड़ी जैसी एक चीज़ की बात करते हैं तो साड़ी एक ऐसा लिबास, एक ऐसा परिधान है जो कि एक इंडियन अटायर को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है कि यार जहाँ हाँ हाँ, देखिए ऑफ कोर्स जहाँ हम साड़ी की बात करते हैं तो साड़ी इज़ अ मतलब बिल्कुल इंडियन के साथ, लेकिन वही साड़ी जो है आप गांव की देहाती औरत भी पहनती है तो आपने देखा होगा कि वही शहरों में भी पहनी जाती है, वही जो है फुल स्लीव्स के साथ भी पहन लेती हैं वो लोग, और वही जो है बैकलेस और विद डीप प्लंगिंग नेकलाइंस के साथ भी यार पहनी वो जाती बहुत वो भी तो है। और वो भी रिवीलिंग है। और अगर of आपने course, इशू बनाना है हाँ, तो उसको और भी इशू वो बना सकते देखने हैं। का हमारा नज़रिया है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब सब्यसाची की बात आती है तो सब्यसाची ने हमेशा ही इंडिया और इंडियन अपने अटायर्स वगैरह को प्रमोट किया है। बिकॉज मैं एक दो जो हमारे गेस्ट हैं उन लोगों के भी व्यूज़ सुन रही थी। थोड़ा मॉडस्ट हो जाते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं, बट हर चीज़ को कॉम्युनल लेंगे तो इट इज़ लाइक बहुत टफ हो जाता है सबके लिए काम करना। एंड यही कहते हैं कि सब खुश रहे, क्योंकि छोटी छोटी बातों का अगर हम अपना बनाते रहेंगे इसी तरीके से इश्यूज़ बनाते रहेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीबडी टू वर्क टू थिंक, क्योंकि वही है कि हर चीज़ को हर किसी चीज़ के साथ जोड़ के नहीं देखा जा सकता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक ही बात बोलूँगी कि हर चीज का इशू ना बनाएं, बिल्कुल अच्छे से चले। मतलब आप मूवीज में भी देखते हैं, किसी भी मूवी को लेके हम लोग इशू बना अभी लेते तो हैं कई अगर हम बार। ये बात करेंगे तो OTT के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही आप देखिए तो कितना ज़्यादा ओपन हो चुका है हो सब चुका है कुछ, बहुत तो ज्यादा। हम अगर इश्यूज बनाए तो हर चीज़ के अंदर इश्यूज हैं। Yes. सो चलिए बस इतना ही एनीवेज, बोलेंगे, और बाकी हम तो ये कहेंगे कि हम लोग तो खैर खुशियाँ बांटने का काम करते हैं, हमारा तो काम ही सिर्फ यही है कि लोगों की ज़िंदगी में हम खुशियाँ लाएं। तो हम ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी वैसी खुशियाँ रहे, सब्यसाची जी की ज़िंदगी में भी वैसी खुशियाँ रहे, Yes. उनके जो क्लाइंट्स हैं बिल्कुल। उनकी ज़िंदगी में वैसी खुशियाँ रहें, और हैप्पी दिवाली वंस अगेन। या हैप्पी दिवाली।